اور اس کے بعد مختصر لفظوں میں آپ حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک مسافر بچوں کا دینی ادارہ ہے، جامعۃ الحسنین کے نام سے الحمدللہ پچھلے تقریباً 13 سال سے یہ مدرسہ کام کر رہا ہے۔ ہر سال ماشاءاللہ 8، 9، 10 بچے یہاں پر باقاعدہ حافظ بن کر وفاق المدارس کا امتحان دے کر الحمدللہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ اس سال بھی 9 طالب علموں نے الحمدللہ وفاق المدارس کا امتحان دیا، اور الحمدللہ ہمارے تمام ہی طلبہ ممتاز پوزیشن میں، ایک طالب علم جید جداً اور تمام ہی طلبہ کو اللہ نے ممتاز پوزیشن میں پاس کیا۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان اور کرم ہے۔ دوستو، یہ ادارہ آپ حضرات کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے فیز 1 میں جامعۃ الحسنین کے نام سے الحمدللہ کام ہو رہا تھا۔ وہ جگہ کم تھی، تقریباً 7,500 فٹ، وہاں پر بھی الحمدللہ مسافر تقریباً 100، 125 بچے وہاں مقیم رہے، اور الحمدللہ کام چلتا رہا، اور کام پھر آگے بڑھا۔ ہم نے درس نظامی بھی شروع کیا، عالم کا کورس جسے کہا جاتا ہے، لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے مزید کام کو بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تو ہم نے اللہ سے مانگا اور طلبہ کو آیت کریمہ پر لگایا کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں ایک کشادہ جگہ عطا فرما دے، جو ہمارا عزم اور ہماری نیت اور ہمارا جذبہ اور ہم جو چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دینی دارالعلوم ہونا چاہیے کہ جس میں تمام علوم پڑھائے جائیں، قرآن کی خدمت ہو، علوم قرآنیہ کی خدمت ہو، عصری تعلیم بھی دی جائے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم نے کوشش کی، اللہ سے مانگتے رہے، تو اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ اسی سوسائٹی میں فیز 3 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ ہم نے خریدی، کچھ وقف جگہ مالکان نے ہمیں دی، اور 1.25 ایکڑ جگہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس دینی ادارے کے لیے عطا فرما دی۔ اس میں سے ایک بلاک جو تقریباً 8,500 فٹ پر مشتمل ہے، یہ ایک بلاک کی 2 چھتیں لگ گئی، اس کے اوپر بھی تعمیر ہونی ہے، پھر اس دیوار کے اس طرف بھی ہماری جگہ ہے، اسی طرح کا بلاک انشاءاللہ وہاں بھی بنے گا۔ اور اس بلاک کے ختم ہوتے ہی 15,000 فٹ پر مشتمل مسجد کا پلاٹ ہم نے مختص کیا، جو کارنر کا پلاٹ ہے۔ 15,000 فٹ پر مشتمل انشاءاللہ ایک وسیع و عریض انشاءاللہ مسجد بننی ہے، جس کی بنیادوں کا تھوڑا سا کام ہم نے کیا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ہو رہی ہے، وسائل مہیا ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے، اور دنیا کیونکہ دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک وسیع مسجد ہے جس کی ضرورت ہے۔ اس وقت فیز 3 میں ماشاءاللہ آبادی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن مسجد نہ ہونے کی وجہ سے ساتھیوں کو یہاں پر پریشانی ہے۔ وہ مسجد تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے، انسان بیچارہ کمزور ہے، وہاں بعض ساتھی نہیں جا پاتے، جس کی وجہ سے بہت سے ساتھیوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو اس بات کی فکر ہے کہ ہم یہ مسجد کا کام آگے بڑھائیں۔ عید کے متصل بعد انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ مسجد کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ مکمل مسجد تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے، 15,000 فٹ ہے۔ فی الحال مشورے میں یہ طے پایا کہ جو 2,000 فٹ تقریباً وضو خانے کا ایریا ہے، اس کی مکمل ڈی پی سی لگ گئی ہے، مٹی بھرائی بھی ہو گئی۔ انشاءاللہ عید کے بعد اس کی چھت ڈالنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی چھت ہو جائے گی تو وہ ایک بڑا 2,000 فٹ کا ہال ہوگا۔ اس میں ہم انشاءاللہ باقاعدہ 5 نمازیں اذان کے ساتھ شروع کر دیں گے۔ وہ مکمل نمازیں ہو رہی ہوں گی وہاں پر، اور اس کا جو اگلا اصل مسجد کا حصہ ہے اس کی تعمیر انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ کا فضل ہوتا چلا جائے گا اور وسائل مہیا ہوتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ اگلا کام چلتا چلا جائے گا۔ جب اگلا حال ہمارا بن جائے گا تو وضو خانے کا جو ایریا ہوگا اسے باقاعدہ جو وضو خانے کی ترتیب ہوگی اس شکل میں انشاءاللہ بنا لیا جائے گا۔ تو بھائی ایک تو ہمارے سامنے جو تقاضا ہے یہ مسجد کا ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ مسجدیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ایک اینٹ بھی جو ہم اللہ کے گھر میں لگاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ایک اینٹ بھی اللہ کے حضور گواہی دے گی، یا اللہ وہ فلاں ابن فلاں تیرا بندہ اور تیری بندی ہے، اس نے مجھے تیرے گھر میں لگایا تھا، اس اینٹ کی بھی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو قیامت کے دن اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے شہادت ہو اور ہماری گواہی دینے والے ہوں اور ہمارے لیے کوئی نجات کی صورت نکلے، تو اپنے پاکیزہ مال میں سے ہمیں اللہ کے گھروں میں لگانا چاہیے۔
याद रखिए कभी भी अल्लाह के घरों के काम रुकते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद भी बन गई, मदरसा भी बन गया, यहां भी अल्लाह ने इतना काम कर दिया, आगे भी होगा। खुश नसीब वो लोग होते हैं कि जिनके माल को अल्लाह कबूल फरमाता है। और याद रखिए अल्लाह के घर में माल जो लगेगा उससे हमारे माल में कमी नहीं होगी। वह युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला मजीद बढ़ा देंगे और बरकतें अता फरमाएंगे। तो एक तो ये तकाजा है कि इस मस्जिद की तामीर के लिए हमें दामे दरमे सुखने कल में जो हो सकता है हमने ताउन करना है। बाज दफा आदमी इंसान खुद ताउन कर रहा होता है, बाज दफा वो कहीं दावत दे देता है किसी और रिश्तेदार अजीज व अकारिब या भाई को बताकर कि जी फला जगह मस्जिद की जरूरत है, काम हो रहा है। फरमाया मन दल्ला अलल खैरी कफाइलिही, आपकी रहनुमाई से अगर किसी और ने भी अपना ताउन यहां पर जमा कराया तो हदीस की रूह से जितना सवाब उस ताउन वाले को मिलेगा बराबर का सवाब अल्लाह आपको भी अता फरमाएंगे, क्योंकि आप जरिया बनेंगे। तो आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, खुद भी ताउन करें और दूसरे साथियों तक भी इस आवाज को पहुंचाएं। इसके साथ साथ आपके सामने ये मदरसा है, इसकी भी तामीरात का काम चल रहा है। और मुसाफिर जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर तकरीबन 150 बच्चे, 2-4 आगे पीछे कभी गैर हाजिर, 150 बच्चों के खाने का एहतिमाम होता है। तीनों टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 150 बच्चे यहां पर खाना खाते हैं। अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ही राजिक हैं, अल्लाह ही का निजाम अल्लाह चलाते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया दारुल अस्बाब है, भाई ये खाने का जो सिस्टम है ये ज़कात फंड से होता है, ये राशन की जो खरीदारी होती है ये ज़कात फंड से होती है। तो आपसे गुजारिश है कि भाई रमजान में अक्सर मामूल होता है ज़कात की अदायगी का, तो आप हजरात भी इस इदारे को अपनी ज़कात में याद रखेंगे। आप में से बहुत से साथी अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बकिया साथियों से भी गुजारिश है कि ये आपकी ज़कात मुस्तहिक जगह पर लगेगी और आपके लिए सदका जारिया भी ये ज़कात बन जाएगी कि आपकी ज़कात के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जो थर के हैं, दूर दराज के हैं, वो यहां पर हाफिज बन जाएंगे। कल ये हाफिज बनकर, कारी बनकर आगे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, उनको भी सवाब मिल रहा होगा। आप मुआविन बने, अल्लाह आपको भी उसका अजर अता फरमा रहा होगा। इसलिए आप हजरात अपनी ज़कात में से भी, अपने सदकात में से भी इस इदारे को याद रखें। जामिअतुल हसनैन के मुसाफिर बच्चों को आपने याद रखना है। आप हजरात के जहन में होगा कि वो पुराना जो हमारा मदरसा, बस मुख्तसर अर्ज करूं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चियों का मदरसा कर दिया। माशाल्लाह मदरसतुल बनात का शुरू से हमारे यहाँ सिलसिला था। वो मेरे घर की छत पर एक रूम था लेकिन जगह कम थी, तो फिर ये हुआ कि बच्चों का मुकम्मल सिस्टम यहां कर दिया, तमाम मुसाफिर बच्चे यहां पर, और वो मुकम्मल मदरसा हमने बच्चियों के यानी मुअल्लिमात के हवाले किया। वो मदरसातुल बनात बन गया जहां इस वक्त 5 मुअल्लिमात पढ़ा रही हैं माशाल्लाह, और 150 के करीब बच्चियां हैं जिनमें खयाबानी यूसुफ की बच्चियां भी हैं और गिरदोनवा की सोसाइटियों की भी हैं, और हीराबाद और नूरशाह कॉलोनी तक से माशाल्लाह रक्शे में बच्चियां आती हैं। और माशाल्लाह यहां पर उनको हिफ्ज और नाजरा बतजवीज पढ़ाने का मुकम्मल एहतिमाम हो रहा है। ये आप हजरात के ताबुन से कि खयाबान यूसुफ में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल बनात भी चल रहा है, मदरसतुल बनीन भी चल रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम साथी अपना इस तामीरात के हवाले से भी और ज़कात के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। और याद रखेंगे, दुआओं में भी याद रखें, यकीनन अल्लाह से आपने भी दुआ करनी है, हमने भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है, नीयत ये है, जज्बा है कि अपने शहर को एक ऐसा दीनी दारुल उलूम दे जाएं जिसकी जरूरत है, या हम यूं कहें कि दीनी यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हिफ्ज वाले बच्चों को बाकायदगी से रोजाना स्कूल की तालीम भी दी जाती है। 3 मास्टर हजरात हैं, रोजाना इंग्लिश, उर्दू, रियाजी बाकायदा निजाम है, और इन्हीं बच्चों को असली तालीम भी दी जा रही है। और फिर रात को कारी साहिबान की निगरानी में इन्हीं बच्चों को बिठाकर होमवर्क भी करवाया जाता है। आप हजरात बहुत से जानते हैं। इसी तरह रोजाना हमारे यहाँ असम्बली का एहतिमाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के मदारिस में जो एक नज़म है, हैदराबाद के मदारिस में, उसी तरतीब पर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बड़ों की सरपरस्ती में, मुशावरत से उसी नहज पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और रोजाना बाकायदा हमारे तमाम बच्चे असम्बली में खड़े होते हैं, और हमने अपनी असम्बली का अपना एक स्टाइल रखा है। और तरतीब यह होती है कि रोजाना एक तालिब इल्म जिसको कारी साहब ने रात वो हदीस बता दी होती है, उसने याद कर ली होती है, एक तालिब इल्म आगे आएगा और पहले तिलावत होगी, और फिर वो तालिब इल्म वो हदीस के अरबी अल्फाज दोहराएगा, और तमाम वो तलबा वो अरबी अल्फाज दोहराएंगे 4 मरतबा, और 4 मरतबा उसका तर्जुमा होगा।
और फिर जिन बच्चों ने जो पिछली हदीस है, फिर बीच बीच में से कारी साहबान उनसे भी हदीस सुनते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हमारे बच्चे एक हदीस रोज याद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब हमारे बच्चे हाफिज बनकर जाएंगे, यहां हिफ्ज पूरा, वहां प्राइमरी पूरी, और यहां इंशाअल्लाह 400, 500, 600 अहादीस का जखीरा भी उनके पास होगा। और ये जो वक्त होता है, इस वक्त जो चीजें याद हो जाती हैं वो भूलती नहीं हैं। हमने हिफ्ज के दौर में जो अहादीस याद की वो आज तक याद हैं, और जब बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे उस वक्त की याद की हुई फिर भी भूल गई। तो हिफ्ज के दौर में जो अहादीस याद होती हैं, तो रोजाना एक मुख्तसर हदीस बाकायदा माशाअल्लाह हमारे यहाँ असेंबली में पढ़ाई जाती है। आप हजरात शायद सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे। इसी तरह हमारे यहाँ बच्चों का तजवीद का मुकाबला हम करवाते हैं, कुरान का मुकाबला करवाते हैं। इसी तरह और बहुत सी चीजें तरबियती हवाले से हम कोशिश करते हैं। हर जुमेरात को तरबियती नशिस्त होती है, अमलन प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो भाई कोशिश ये है कि अपने इस शहर में माशाल्लाह तमाम मदारिस की मेहनत है, हम भी ऐसी मेहनत करें कि जिसका हमें अच्छा नतीजा मिले, और माशाल्लाह हमारे शहर में भी अच्छे मदारिस और बेहतर तरीके से वो इंशाअल्लाह सामने आए। तो ये एक दीनी यूनिवर्सिटी, दीनी दारुल इंशाअल्लाह बनेगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में बनेगा, लेकिन आपके ताउन से इंशाअल्लाह ये काम होगा। तो तमाम साथी भाई इंशाअल्लाह ताउन करेंगे भी इंशाअल्लाह। दुआओं की सूरत में भी ताउन करें और दवाओं की सूरत में भी ताउन करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हजरात माशाअल्लाह कोई साथी हीराबाद से, नूर शाह कॉलोनी से, बाज महाजिर कॉलोनी से डेली पाबंदी से माशाल्लाह यहाँ पर आते रहे। मैं इस पर माशाल्लाह आप हजरात को मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई, आपने पाबंदी से कुरान पाक सुना। अब अल्लाह ताला हमें इस कुरान पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे और कुरान की खिदमत करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।